आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में शरीक हैं। वफाकी वज़रा भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना आपको बताएं कि चश्मा 5 एटमी पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती यादाश्त पर इस वक्त तकरीब जो है वो हो रही है और उस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चश्मा 5 एटमी पावर प्लांट की तकरीब में शिरकत है और इस वक्त मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की ये तकरीब जारी है। दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। आपको बताएं कि चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं। आपको बताएं कि चश्मा 5 पावर एटमी प्लांट की तामीर की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की ये तकरीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं और जो इस मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हो चुके हैं। दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ जिनका अज़्म है कि मुल्की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है, चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर की मुफाहमती यादाश्त की तकरीब में मौजूद हैं और इस यादाश्त पर भी दस्तखत हो चुके हैं। चश्मा 5 एटमी पावर प्लांट की तामीर की ये मुफाहमती यादाश्त है, ये तकरीब है जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में खिताब करने लगे हैं। Honorable Federal Ministers, Government Officials, Honorable Charge d'Affaires Madam Pang, Vice President CNNC Mr. Chen Yangfang, members of Chinese delegation, Assalamu alaikum and a very good morning. It's a great occasion and a great moment between two great friends, China and Pakistan. We have just witnessed signing ceremony of 1200 megawatt nuclear energy power project named C5. This is a great step forward between economic cooperation between China and Pakistan. A few months ago, I had inaugurated K3 nuclear power project at Karachi, and today we have signed agreement for C5. Hopefully we will kickstart it without further delay, and under these difficult economic situation Pakistan is up against, investment from China in this project to the tune of $4.8 billion sends a message loud and clear that Pakistan is a place where Chinese companies and investors continue to show their trust and faith in Pakistan. Not only that, this reflects that famous quote that our friendship is higher than Himalayas, deeper than the deepest ocean, and sweeter than sugar and honey, and stronger than iron and steel. President Xi Jinping has called this friendship as iron brothers. I just want to
mention another point in English, then a few sentences in Urdu, that of late, when Pakistan is faced with economic challenges and we are engaged with IMF trying to finalize IMF ninth review, and Pakistan has met all terms and conditions required by IMF. We thought this would have been done 2 months ago, 3 months ago, but there has been inordinate delay. And I must tell my brothers and sisters, 200 million people of Pakistan, that China once again came to our help and our rescue. So this is friendship. A friend in need is a friend indeed. Well, other than China, we have our great friend, brotherly countries like Saudi Arabia, UAE and Qatar, who have been helping Pakistan and are still supporting Pakistan. But at this point in time, at this juncture, Chinese financial support have been outstanding. I have no words to how to explain and how to convey my sincere gratitude. We are deeply obliged to President Xi, to Chinese leadership and Chinese finance minister, and I'd like to convey my deep, sincere thanks to Mr. Ishaq Dar, our finance minister, and his team for working day in and day out to strike these agreements with Chinese counterparts. I'd like to thank Madam Pang, our charge d'affaires, for helping us out of the way to get us out of the trouble. Thank you very much. Thank you, Chinese friends. Thank you, President Xi, and thank you, Chinese leadership and Chinese people. मैं आज पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज हमने चाइना की कंपनी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दरमियान C5 चश्मा 5 जो कि हमारा एक न्यूक्लियर एनर्जी मंसूबा है 1200 मेगावाट का, इस तरह के चीनी साख्त के मंसूबे पाकिस्तान में मौजूद हैं और बिजली हज़ारों मेगावाट बिजली मुहैया कर रहे हैं। अभी चंद माह पहले मैंने कराची में K3 का मंसूबा उसका इफ्तिताह किया था और आज हमने चश्मा 5 का जो मंसूबा है 1200 मेगावाट का, उसका अभी मुआहिदा हुआ है। हम सब ने इस सेरेमनी में शिरकत की है। इसके लिए मैं चाइनीज़ लीडरशिप जनाब सदर शी जिनपिंग और चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ कंपनी का शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान में 4.8 अरब डॉलर की लागत के साथ ये मंसूबा इंशाअल्लाह यहाँ पर बहुत जल्द तामीर के मराहिल तय करेगा। और मैं चीनी कंपनी और चीनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गो कि ये मंसूबा मियाँ नवाज शरीफ के दौर में असूली तौर पर लगाने का फ़ैसला हो गया था और जो मेन जो शराइत तय हो गई थी, आज इस मंसूबे को पिछली हुकूमत ने सर्द खाने में डाल दिया था। आज इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए आज ये मुआहिदा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ चीनी कंपनी के ज़ोमा का और चीनी हुकूमत का, क्योंकि स्टेट ओन कंपनी है चाइना की,
کہ گو کہ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ انفلیشن ہے اور انفلیشن کی بنا پر قیمتیں بڑھ چکی ہیں. یہ قیمتیں 2017-18 میں اس کا تعین ہوا تھا. تو اگر ایوریج انفلیشن سالانہ لی جائے 10%، تو یہ قیمت کہیں آگے ہونی چاہیے تھی. نہ صرف یہ کہ چینی کمپنی نے قیمت نہیں بڑھائی، بلکہ میری درخواست پر انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے 30 ارب روپے کا اس میں ہمیں مزید یعنی قیمت کم کی ہے، ڈسکاؤنٹ دیا ہے 30 ارب روپے کا. یہ 2 مراحل میں ہوا. پہلے چینی کمپنی نے میری درخواست پر 500 ملین RMB اور اب آج 250 ملین RMB کا اور اس میں ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جو کہ ملا کے 30 ارب روپے بنتا ہے. اس کے لیے میں جناب احسن اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے اس میں بڑی جاں فشانی سے محنت کی ہے خلوص کے ساتھ. میں اور ان کی ٹیم نے چائنا تشریف لے گئے اور ساتھ اس میں دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی تھے اس ڈیلیگیشن میں. میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، ان کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور کئی مراحل پر ہماری مدد کی. اس میں خرم دستگیر صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر پاکستان کی جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت دلچسپی لی. اور یہ ایک حسین امتزاج ہے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے 1 پیج پر ہونے کا. یہ اس کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا اور رواں دواں ہوگا. میں یہاں پر میاں نواز شریف کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا ویژن ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ میاں نواز شریف نے 1990 میں پہلی مرتبہ چین کے ساتھ نیوکلیر پاور پروجیکٹس کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ اس کا پھر تسلسل ہے. تو میں آج ختاماً پاکستان کو، قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ افراط زر کے باوجود، 6 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود چینی کمپنی نے نہ صرف اپنی قیمتیں برقرار رکھیں بلکہ مزید 30 ارب کا اس میں ڈسکاؤنٹ دیا ہے. اور چین نے حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں چینی قیادت نے جو پاکستان کی بے مثال مدد کی ہے فائنینشل، اور جو ہمارے جو قرضہ جات تھے ان کو، چاہے وہ کمرشل ہیں یا سوورن ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے رینیو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی معاونت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، یہ ایک بے مثال دوستی کا، لازوال دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے، مثال ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں، آڑے وقت میں کام آئے. اچھے وقت میں تو سبھی دوست ہوتے ہیں، برے وقت میں پرندے اڑ جاتے ہیں. چین ہمارے پاکستان کے ان بہترین اور بااعتماد دوستوں میں شامل ہوتا ہے جس نے پاکستان کو، پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. مشرق وسطیٰ میں ہمارے بہترین، ہمارے اسلامی ممالک دوست ہیں. سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، اور قطر ہے، کویت ہے. چائنا نے ہر لحاظ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. میں یہاں پر اپنے تمام کولیگز کو میں ابھی یہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ دوستوں کی مہربانی کو کبھی نہ بھولنا، یہی ہے راستہ ترقی اور خوشحالی کا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ 1200 میگا واٹ جوہری پاور پلانٹ منصوبہ پاک چین دوستی میں ایک اور سنگ میل ہے. معاہدے سے پاک چین معاشی تعلقات کو فروغ ملے گا.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूनान के कश्ती हादसे में कीमती जानें लुक़्मा अजल बन गई। आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए नौजवान समंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गए। अलमनाक हादसे के बाद कई शहरों में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूनान का कश्ती हादसा, कई घरों के चिराग बुझ गए, जाने वाले प्यारों को हमेशा के लिए रोता छोड़ गए। 300 से ज्यादा पाकिस्तानी डूबकर जाँ बहक हुए, जिनमें से 12 को जिंदा बचाया गया। अभी भी कई ऐसे हैं जिनकी लाशें नहीं मिल सकी और लवाहिकीन को उनके जिंदा रहने की उम्मीद है। मंडी बहाउद्दीन के 6 नौजवान आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए बैरून मुल्क रवाना हुए, लेकिन मंजिल तक न पहुंच सके। ये नौजवान भी कश्ती हादसे की नजर हो गए, जबकि एक खुशकिस्मत नौजवान मेहताब अली को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती हादसे के बाद वजीराबाद की फिजा भी सोगवार है। 9 खानदान के घरों में सफ़े मातम बिछी है। नवाही गांव पिंडोरी कला के 6 नौजवान इसी हादसे में लापता है। इन नौजवानों के लवाहिकीन गम से निढाल हैं और जिंदा वापसी की राह देख रहे हैं। कश्ती हादसे में गुजरात के 50 नौजवानों के लापता होने का इंकशाफ हुआ। अक्सरियत 20 से 32 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। सिर्फ एक उस्मान नामी नौजवान ही जिंदा बच सका, बाकी कश्ती हादसे के बाद ताहाल लापता है। शेखुपुरा की फिजा भी सोगवार है। 6 नौजवान इस हादसे का शिकार हुए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया। आजाद कश्मीर कोटली में डिविजनल इंतजामिया ने जाँ बहक होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन के DNA टेस्ट के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर के मुताबिक DNA टेस्ट के लिए अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। दूसरी जानिब स्मगलर्स के नेटवर्क के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलमनाक हादसे के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ हरकत में आ गए हैं। गुजरांवाला और शेखुपुरा में FIA ने कार्रवाई करते हुए 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह FIA ने गुजरात और गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज किए हैं। वजीराबाद से भी एक इंसानी स्मगलर शब्बीर इंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापों के बाद जहां कई एजेंट्स गिरफ्तार हुए, वहीं कई रुपोश भी हो गए। यूनान कश्ती हादसे के बाद गुजरात की फजा सोगवार है। लापता अफराद की तादाद भी अब बढ़ने लगी है। नवाही इलाके गोलकी का टैक्सी ड्राइवर मखदूम भी उसी बदनसीब कश्ती पर सवार था। इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद शाह लापता होने वाले नौजवान टैक्सी ड्राइवर के घर पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नवीद आगाह कीजिए। एक यूनान कश्ती हादसा के बाद जो गुजरात की सूरत ये है कि गुजरात का जो माहौल है वो सोगवार है। हर गली, हर महल्ले, हर गांव का कोई ना कोई नौजवान जो है वो इस वक्त लापता है। इस वक्त मैं गुजरात का इलाका गोलेकी में मौजूद हूँ। मखदूम नौजवान था जिसके 3 बच्चे हैं, वो भी इसी कश्ती पर सवार था। उनके घर वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हालांकि मेरा भाई, मेरा दोस्त मखदूम एक टैक्सी चला रहा सी और उसनों एजेंटा ने अच्छे ख्वाब दिखाए। उसने अपनी गड्डी दे के अपने बच्चों का रोज़गार छड़ के अपने बच्चों को अपने बेहतर मुस्तकबिल वास्ते यूरोप में निकलिया, लेकिन बदकिस्मती नाल कश्ती हादसे का शिकार हो गई, जिस वजह मखदूम सादक भी जाता रहा। साढ़े पिंड के 6 नौजवान और जिन्हों के विचों 4 मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी ने, भाइयों की जगह ते ने। अज दसो मैं की करा। नाजरीन, आपने सुना मखदूम जो है वो गुजरात में टैक्सी चलाता था और उससे अपना रोज़गार चलाता था। अब वो लापता है कि घर वाले हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको बताया जाए कि वो इस वक्त जो लापता अफराद है वो कहाँ पर है और किस हालत में है। यूनान कश्ती हादसे के बाद नौशहरा विरका में भी सोग का समा है। हर आंख अश्कबार है। नौशहरा विरका से 22 नौजवान हादसे का शिकार होने वाली कश्ती पर सवार थे और 10 नौजवानों का ताल्लुक एक ही गांव से था। इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इमरान बशीर नवाही गांव कड़ियाल में लापता होने वाले नौजवान बिलाल के घर पे मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इमरान आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा विरका के नवाही गांव कड़ियाल कला में, जहां से 10 के करीब नौजवान जो हैं वो रोशन मुस्तकबिल के सपने से जाए बैरून मुल्क के लिए रवाना हुए और यूनान कश्ती हादसा में लापता हो गए। उन्हीं नौजवानों में से एक 19 साल नौजवान मोहम्मद बलाल के वालिद मोहम्मद अमजद हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका अपने बेटे से आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ। 7 महीने पहले यहाँ से लड़के 6 गए थे, नदीम जट ने भेजे थे। 6 महीने अगर वो कभी इधर कर लेता कभी इधर। जुमेरात के दिन शाम को बच्चों से रब्ता हुआ था। उन्होंने कहा था तो जुमेरात दिन नदीम ने हमसे कहा फिर बच्चे चले गए हैं।
उसने आप लोगों से रकम पहले ले ली थी, 2 से लेनी थी, वो लेके फरार हो गया घर से। जैसा कि आपने सुना कि एक एजेंट ने इनके बच्चों को सुहाने सपने दिखाकर इनको लीबिया ले जाकर 6 माह तक वहाँ पे बिठाए रखा, और अब जो वो एजेंट है वो अपने घरों को ताले लगाकर गायब हो चुका है, और अब इनका यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि उस एजेंट को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और इनकी दाद रसी की जाए। पाकिस्तान का दिफाई बजट तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। जीडीपी के तनासुब से पाकिस्तान का दिफाई बजट 5 दहाइयों में 6.5% से गिरकर 1.7% तक आ गया। गुज़श्ता 6 बरसों में कुल कौमी बजट के तनासुब से डिफेंस बजट 19.5% से गिरकर 12.5% पर पहुंच गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। अदील, भारत में जो है वो डिफेंस बजट बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर कमी हो रही है, वजूहात क्या हैं? जी, सिर्फ गुज़श्ता 6 बरस के दौरान देखा जाए तो भारत में डिफेंस बजट में 35% इजाफा हो चुका है और भारत अपने दिफा पर खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है ये तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। जीडीपी के तनासुब से देखें, कुल कौमी बजट के तनासुब से देखें और अगर डॉलर्स के तनासुब से देखें तो इन तीनों तनासुब से पाकिस्तान का दिफाई बजट इसमें खातिर ख्वाह कमी हुई है। अगर जीडीपी के तनासुब से बात करें तो पाकिस्तान का दिफाई बजट 5 दहाइयों में 6.5% से गिरकर 1.7% तक आ गया है, जबकि गुज़श्ता 6 बरसों में कुल कौमी बजट के तनासुब से डिफेंस बजट 19.5% से गिरकर 12.5% पर आ गया है। ये इससे पहले 2015 में 17.5% था कुल दिफाई बजट जो है, कुल बजट जो कौमी बजट है इसके मुकाबले में 2017 में ये 19.5% तक था, मगर अब ये 12.5% तक आ गया है। 6 वर्षों में जो पाकिस्तान का दिफाई बजट अगर डॉलर के तनासुब से देखा जाए तो ये 10.2 अरब डॉलर से कम होकर 6.3 अरब डॉलर पे आ गया है और डिफेंस बजट की जो आलमी औसत शरह के तनासुब से इस वक्त पाकिस्तान के दिफाई अखराजात 22% कम हैं। और जो भारत है जो कि गुज़श्ता 6 बरसों में दिफाई बजट में 35% तक इजाफा कर चुका है और इस वक्त दुनिया के 48 ममालिक ऐसे हैं जो जीडीपी की शरह का बड़ा हिस्सा अपने दिफाई बजट पे खर्च कर रहे हैं, हत्ता कि उनमें श्रीलंका, लाइबेरिया, शाम, यमन, कुवैत और ईरान भी इसमें शामिल हैं। लेकिन दीगर ममालिक भी शामिल है जो कि इसमें जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के 4 माह अखराजात के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ 80 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर जमील से। आमिर, इन तजावीज़ के हवाले से बताइएगा। पख्तूनख्वा का अगले 4 माह के लिए बजट जो है वो आज पेश किया जा रहा है। तकरीबन 11 बजे के बाद जो है इस हवाले से इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया और शाम 4 बजे के बाद जो है इस हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो हम इस बजट में ख़ास तौर पर कफ़ायतशारी के इक़दाम को मद्देनज़र रखा गया है और इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो सरकारी नई असामी हैं उन पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ है और जो असामियाँ गुज़श्ता 3 सालों से खाली हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी तजवीज़ है और इसके साथ साथ खाली असामियों पर जो तैनाती है वो महकमा ख़जाना की मंजूरी से मशरूत की जा रही है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि इस दफ़ा का जो बजट अगले 4 माह का पेश किया जा रहा है उसमें पाबंदी आयद की जा रही है, जिसमें वज़रा की जानिब से जो बैरून मुल्क सरकारी ख़र्चे पर जो इलाज होता है, इसके साथ साथ इलाज के साथ साथ जो वहाँ पर उनकी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उन पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। इसके साथ जो मजदूर की जो कम से कम तनख्वाह है वो 26,000 रुपये से बढ़ाकर 32,000 रुपये करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से बाहर हो गए हैं। नजम सेठी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब
نہیں بننا چاہتا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان گزشتہ کئی روز سے تنازع تھا۔ نون لیگ چاہتی تھی کہ نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ کے معاملات کو بہتر انداز سے چلا رہے ہیں، اسی لیے انہیں ہی برقرار رکھا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کا حق ہے۔ اس تنازع کے دوران نجم سیٹھی نے خود کو کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ کی دوڑ سے باہر کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر نجم سیٹھی نے لکھا، شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان تنازع کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ اس طرح کا عدم استحکام پی سی بی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں اب میں چیئرمین شپ کا امیدوار نہیں ہوں۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین نجم سیٹھی کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننگ بورڈ کی تشکیل کے امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ مزید کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں جان لیتے ہیں۔ عباد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جو چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ہے نجم سیٹھی، انہوں نے خود کو چیئرمین پی سی بی کی دوڑ سے خود الگ تو کر لیا ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس آج شام کو طلب بھی کر لیا ہے۔ مینجمنٹ کمیٹی کی صدارت کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نجم سیٹھی کریں گے اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننگ بورڈ کی تشکیل کے امور بھی زیر بحث آئیں گے، جبکہ اس میٹنگ میں ڈپارٹمنٹ کے 4 ریجنز کے 4 نمائندوں کی منظوری بھی لی جائے گی، اور اس کے ساتھ جب کمیٹی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے اس وقت وزیر اعظم نے مینجمنٹ کمیٹی کو گورننگ بورڈ بنا کر الیکشن کروانے کا بھی ٹاسک دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ مینجمنٹ کمیٹی میں نجم سیٹھی صدارت کریں گے، جبکہ شکیل شیخ، ہارون رشید اور گلزادہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر حصہ لیں گے، جبکہ شاہد خان آفریدی اور ثنا میر مینجمنٹ کمیٹی میں کام کرنے سے پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا عباد۔ حریم شاہ لیگ ویڈیوز کیس ملزم سندل خٹک کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزمہ سندل خٹک کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزمہ سندل خٹک کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے حسیب ملک سے۔ حسیب، اس سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ حریم شاہ کی نازکہ ویڈیو کی لنک کرنے کے حوالے سے یہ معاملہ جو کہ اسپیشل جج کی عدالت میں آج ٹک ٹاک اسٹار جو ہیں سندل خٹک کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہے، اور سماعت اسپیشل جج سینٹرل اعظم خان عدالت۔ ٹھیک ہے حسیب ملک، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی فواد چوہدری اور اسد عمر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 11 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی، تینوں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن یہ کیس ہے، چیئرمین پی ٹی آئی فواد چوہدری، اسد عمر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 11 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی، تینوں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، ایسا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی اس کے علاوہ فواد چوہدری اور اسد عمر کے خلاف یہ توہین الیکشن کیس ہے، جس میں وقار، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ توہین الیکشن کمیشن یہ کیس ہے، چیئرمین پی ٹی آئی فواد چوہدری اور اسد عمر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔